question regarding anything, आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं और मैं आई विल बी वेरी ओपन और बड़ा तरीके से आपको हर चीज़ बता भी सकता हूँ और डिटेल में समझा भी सकता हूँ। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ कैरियर सिलेक्शन, किसी भी तरीके की, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो भाई, इट डजेंट मैटर टू मी। Thank you so आप much. एक बस Thank you Oh, so much, Tariq. thank you so much. Okay. Uh, Shah- uh, Arjun, who is the next speaker? Sir Um, Shoaib? the Shoaib actually left us because he has an urgent work to do. So our next speaker is Hamad Dar, but he is also not there. So guys, if you have any question regarding your FIP, you can ask directly by unmuting yourself. So that means there is no any questions. So I think we have to wind up our session for now, and inshallah. And Tariq, there is another speaker I am announcing right now. Okay, okay, okay. So Hamad Dar Ahmed Dar is from yeah. Kashmir. He's freelancer and e-commerce specialist, and one of uh, public speaker from Azad Kashmir. So he will join us in 1 minute. So please wait, everyone. Hello. Yes, Hamid Dar sahab, you are audible. It is up to you. Thank you so much. Hello. Am I audible to you? Yes, sir, you are audible. Okay, that's great. Can you see me? Yes, yes, sir. Yes, we can. Okay. First of all, Assalamu alaikum, everyone. And thank you so much, Engineer Talks, first of all, for inviting me in such an informative and such an amazing webinar relevant to final year project. My name is Hamid, and I belong from Muzaffarabad, Azad Kashmir, and I am an electrical engineer. Recently, I have been graduated, and I have been taken up in multiple seminars. I was also the president during my education. I was the president of Technical Society, working in electrical engineering department, MUST, and throughout all of my career, I have been gone through multiple exposures, multiple things, and multiple experiences. So it will be an honor for me to share most of the things with you here. So ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को अपना वर्दी एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों को गाइडेंस दी रेलिवेंट टू फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, नॉट ओनली द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपको काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया कि कैसे फील्ड में आप लोग मूव कर सकते हैं। सो मैं पर्सनली एक फ्रीलांसर हूँ and I'm doing freelancing from the last 3 years, and I'm right now a pure freelancer and working on Fiverr, working on Upwork, and selling services in a different niche, in a different skill. But मैं आपको बताऊंगा कि what was the reason and why I came from such a very different kind of pathway. First thing is that जो सबसे पहली important चीज है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, यहाँ पे मुख्तलिफ एरिया से लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनका एक बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका जो एजुकेशन सिनेरियो है वो अलग डिफरेंट है। सो डिफरेंट कल्चर्स के लोग बैठे हुए हैं। इंसान
फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है थ्रू आउट द 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। आप इंजीनियरिंग चूज इसलिए करते हैं बिकॉज यू वांट टू बिकम अ टेक्नोक्रेट, यू वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। बट ये बात हम लोगों को उस टाइम के ऊपर नहीं बताई जाती एंड एक फ्लो के अंदर चीज जा रही होती है। सब कह रहे होते हैं एफएससी के बाद क्या करना है, मोस्टली चूज फॉर द इंजीनियरिंग एंड मोस्टली गो फॉर मेडिकल। जस्ट एक ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है कि यार हमने बस इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर चुना है। मल्टीपल प्रोफेशंस आर देयर, मल्टीपल प्रोफेशंस आर देयर। अगर आप सिर्फ एक राइटर की बात करें तो एक राइटर इस वक्त, एक फ्रीलांसर इस वक्त मंथली का $10,000 to $20,000 जस्ट फ्रॉम वन पार्टिकुलर स्किल इजीली अपने लैपटॉप पे कमा रहा है। एंड दिस इज द सेंचुरी, दिस इज द सेंचुरी ऑफ फ्रीलांसिंग, दिस इज द सेंचुरी ऑफ ई कॉमर्स। नॉट मनी इज एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतना पोटेंशियल एक स्किल के अंदर मौजूद है। सो इस पोटेंशियल को रीच आउट करने के लिए एक इंजीनियर अगर मूव करता है अपनी लाइफ में तो वो इंडस्ट्री में जाएगा, सैलरी लेगा, 20 to 25,000 स्टार्ट होगा एंड राइट नाउ 2 years के बाद 1 lakh तक चला जाएगा। बट इट्स वर्दी, इट्स वर्दी, बट he cannot go towards that potential कि आप $10,000 to $20,000 पर मंथ एक लैपटॉप के ऊपर कमा रहे हो। सो व्हाई पीपल गो सो हाई? क्या है ऐसा कि एक सेम फ्रीलांसर $10,000 पर मंथ कमाता है जबकि एक एम्प्लॉय, एक इंजीनियर अराउंड 1 लाख तक कमाता है? रीजन बिहाइंड इज दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी खुदी कि अल्लाह पाक ने आपको कौन सा ऐसा हुनर दिया हुआ है बाय बर्थ। अल्लाह पाक ने आपके अंदर ऐसी क्या सलाहियत डाली हुई है जो कि वर्दी है, जो कि आपके अंदर उस पोटेंशियल को क्रिएट करेगी कि आप उस खास स्पेसिफिक लेवल तक जा सकते हैं अपनी लाइफ में। फर्स्ट मेजर थिंग आप लोग ये करें कि जो भी जूनियर्स हैं, जो इस वक्त इंजीनियरिंग के डिफरेंट सेमेस्टर्स के अंदर हैं, जो डिफरेंट लूप्स में हैं, एजुकेशन के साथ साथ आप अपने आप को एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस में डालें। उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आप लोग अपने आप को एनालाइज करें कि अल्लाह पाक ने ऐसी क्या क्रिएटिविटी आपके अंदर डाली हुई है कि आप बचपन से उसमें इंटरेस्ट हैं। सो इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को मे बी मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे अराउंड 2 years 3 years लग गए एंड आई हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट होल नाइट्स ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। मुझे बहुत टाइम लग गया एंड अभी तक आई एम जस्ट फिगरिंग आउट व्हाट इज बेस्ट इन मी एंड कीपिंग हसलिंग अबाउट द थिंग्स। बट द नॉलेज इज वेरी वर्थी, द प्रोसेस इज वेरी वर्थी, द इंटरेस्ट इज वेरी वर्थी कि आप अपना पोटेंशियल एंड अपना पैशन दोनों सर्च आउट करें। 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग, एक कॉन्सेप्ट इनोवेशन। विद हंगर यू कैन नॉट थिंक, विद एन एम्प्टी स्टोमक यू कैन नॉट थिंक। सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट समथिंग टू ईट समथिंग। हम लोग के इस वक्त मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व करने के लिए यू मस्ट हैव टू ग्रो सम किचन इनकम फॉर योरसेल्फ। सो डाउन यही कहूंगा मैं आपको कि आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोर्स करें कि अल्लाह पाक ने आपके अंदर क्या ऐसी यूनिक स्किल डाली हुई है। जब आप उस चीज को नोट डाउन कर लें, आपको अंदाजा हो जाए कि ये पोटेंशियल है, ये क्रिएटिविटी है, कुछ भी हो सकती है। इट इज नॉट अबाउट कि आप अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप लाइफ में आगे मूव करके एक राइटर नहीं बन सकते। आप लाइफ में मूव करके डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के अंदर लाया नहीं करती। नो, नेवर।
ऐसा नहीं होगा। हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मैं अब आ जाता हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो कि मेन आपका टॉपिक था। ऐसा क्या प्रोजेक्ट फाइंड किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल बात हुई है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ऐसा क्या प्रोजेक्ट उठाया जाए कि जो मुझे लॉन्ग रन में बड़ा फायदा दे। होता यह है कि हम लोग 3 इयर्स यूनिवर्सिटी के अंदर, एजुकेशन सेटअप के अंदर डिफरेंट तरह की स्ट्रगल करके, हसल करके जब हम लोग क्रॉस कर देते हैं, तो एट द एंड ये होता है कि 4th ईयर में आके इस कदर डीमोटिवेट हो चुके होते हैं कि हम कहते हैं बस इंजीनियरिंग की डिग्री किसी तरह से कंप्लीट हो जाए। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर ही आपने अपनी फील्ड के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट डालनी होती है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अब जो आप चूज करें, वो आप चूज करें इंडस्ट्री के मुताबिक कि क्या डिमांड है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है, वो नेक्स्ट टाइम 5G का आने वाला है, 5th जनरेशन स्टार्ट होने वाली है। वो नेक्स्ट टाइम आप जो नेक्स्ट टाइम आने वाला है, वो टाइम आपका सोलर का, वो टाइम आपका रिन्यूएबल्स का आने वाला है, ऑटोमेशन का आने वाला है, और इसके साथ साथ ब्लॉकचेन आने वाली है, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है। सो फाइंड आउट माइक्रो लेवल के ऊपर जाके चीजों को चेकआउट करें। क्या चीज ऐसी है जो कि एक्सप्लोर हो सकती है, क्या चीज ऐसी है कि जो मैं इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, लॉन्ग रन के ऊपर इस चीज को देख सकता हूँ। हो सकता है कि आप में 100 में से एक ऐसा निकले जो कि फाइंड आउट करे, हंट करे, और नेक्स्ट 10 साल बाद, मे बी 5 साल बाद उस चीज की इंप्लीमेंटेशन हो, पॉसिबल हो। सो फाइंड आउट करें। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मैं अगर ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो कल को ये ऐसे हो सकता है, मैं इससे आगे ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जो भी आपके माइंड में आती हैं, अपने सुपरवाइजर्स बहुत मस्ट, अपने सुपरवाइजर्स के साथ कंप्लीटली कनेक्ट रहें। आपके सुपरवाइजर्स आपको बेहतर गाइड करेंगे, बहुत बेहतर गाइड करेंगे, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड हैं और वो फील्ड में बहुत टाइम लगा चुके हुए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप फाइंड आउट करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा अबाउट फ्रीलांसिंग, कि मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ अराउंड 3 to 4 आवर्स फ्रीलांसिंग को दिए, एंड इट वाज अ कंसिस्टेंट स्ट्रगल। एंड right now, alhamdulillah, within after degree, around 6 to 7 months it's been gone, and I am now quite stable in my life. So इतनी स्ट्रगल के बाद फील्ड छोड़ी। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने मुकम्मल तौर पे फील्ड छोड़ी, बट आई वाज नॉट अटैच्ड विद द फील्ड। I was improving my skills in graphics. I was improving my skills in e-commerce. I was improving my skills in Amazon. And I was not aware of it कि आने वाला दौर e-commerce का होगा, आने वाला दौर Amazon का होगा. I was not aware of it. I was just in a complete illusion, and I was so much interested in these kind of things that I keep on searching, keep on reading blogs, keep on seeing videos, and it grows again and again and again and again. And now, alhamdulillah, I am going good in my life. So इकोनॉमिक रिसेशन को क्रॉस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल करना आना चाहिए। दिस इज नॉट रेलिवेंट टू योर इलेक्ट्रिकल फील्ड। आई एम नॉट सेइंग कि आपने जस्ट जॉब करनी है आगे जाके। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यू हैव टू बी सेलेबल एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, any kind of product, whether it is online, whether it is offline. You have to be a mindset. You have to make your mind like a sellable thing. आपके माइंड में
उस प्रोडक्ट, उस चीज को सेल करने का तरीका होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, क्योंकि इसकी रीजन इज दैट हम जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, हम जिस इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहे हैं, हमें अपनी किचन इनकम्स को बिल्ड करना है। नो वन विल से कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली, नो वन विल से कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। नो, यू कांट सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम विदाउट दिस। तो सेलिंग की स्किल अपने अंदर बनाएं। फिर फ्रीलांसिंग मस्ट सीखें। मैं हर ग्रेजुएट, हर स्टूडेंट को कहूंगा कि वो बेसिक नॉलेज फ्रीलांसिंग का मस्ट ले। राइट नाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ऑर्डिनोज, मैटलैब एनालिसिस एंड ऑटोकैड, 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स, many of the things other are selling, and इतना पोटेंशियल है that I can't explain कि इतना काम है, एंड हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं मौजूद। आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, आपको नहीं मिलेंगे पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तानी सेलर्स नहीं मिलेंगे इन कैटेगरी के। इंडियंस मिलेंगे, रशियंस मिलेंगे, आपको इन कैटेगरी का बंदा नहीं मिलेगा एक्सपर्ट लेवल पे। आप पाइथन सीखें, कोडिंग सीखें, बेसिक लेवल की सीखें और उसे सेलिंग करना स्टार्ट करें। एक साइड हसल अपनी लाइफ में जरूर रखें अपने इंजीनियरिंग के दौरान। आपके पास फ्रीलांसिंग है, इसको यूटिलाइज करें इस रिसोर्स को। मे हाउ के डिग्री के फौरन बाद आप एक बिजनेस ओनरशिप की तरफ चले जाएं, एक माइक्रो एजेंसी क्रिएट कर लें, आप देने वाला हाथ बन जाएं, आपके 10 एम्प्लॉयज हो जाएं। हु नोज बेटर? सो एंगेज योरसेल्फ इन दिस। फ्रीलांसिंग में मस्ट एंगेज हो। आपको सेलिंग की स्किल हर हाल में आनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म में आपकी मदद देगी। नेक्स्ट, स्किल कौन सी यूटिलाइज करें? ऐसी क्या स्किल सीखें कि जो फ्रीलांसिंग में हम लोग मूव कर सकते हैं? वही जो मैंने पहली बात की कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद ही आपके अंदर की जो स्किल जो अल्लाह पाक ने डाली हुई है आपके अंदर, अगर तो वो फील्ड के हिसाब से हुई, आपके हिसाब से हुई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर अल्लाह पाक ने थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप में डाली, थोड़े से इलेक्ट्रिकल या फिर उस बैकग्राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, नो बिग इशू, नो बिग इशू। नाउ यू आर गेटिंग इन अ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नाउ यू आर गेटिंग इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग समथिंग। आप अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने माइंडसेट को ग्रो करेंगे। You will be not like the mass, you will be not like the crowd, you will not be like the rats. रैट रेस को छोड़ दे। रैट रेस आपको कहीं पे नहीं लेके जाएगा, रैट रेस आपको किसी लेवल पे नहीं पहुंचाएगा। सो ट्रेडिंग, जो मैंने पहले 2 कॉन्सेप्ट्स किए, ट्रेडिंग वर्सेस इनोवेशन। तो अपने हंगर को, अपने स्टमक को फुल करने के लिए यू मस्ट हैव टू लर्न ट्रेडिंग। आपको सेलिंग और ट्रेडिंग दोनों की स्किल आनी चाहिए। नेक्स्ट, इनोवेशन। इनोवेशन तब होती है जब आप मुकम्मल तौर पे स्टेबल हो, आपका माइंड क्रिएटिव हो, सो यू कैन थिंक एंड यू कैन एनालाइज एंड आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो एट द एंड मैं वाइंड अप करते हुए यही कहूंगा कि आप लोग फोकस करें अपने कैरियर के ऊपर, आप लोग फोकस करें अपनी फील्ड्स पे, अपनी लाइफ में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस कीवर्ड को अपने माइंड में स्टक करें। इस कीवर्ड के ऊपर बार बार सोचें कि व्हाई आई एम हियर, क्यों, क्या है ऐसा अल्लाह पाक ने क्या डिफरेंट डाला है, क्या यूनिक डाली है, मैं हूं क्या, मैं बेसिकली मेरी साइकी है क्या, मैं कौन हूं। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप फाइन लाइनर हैं, आप बॉटम लाइनर हैं, आप टेक्नोक्रेट्स हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को एक प्रोसेस में डालें। ये 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा, यू हैव टू कंटिन्यू कीप मूविंग थ्रू आउट द नाइट्स, थ्रू आउट द ईयर्स। सो एट द एंड मैं थैंक यू करना चाहूंगा इंजीनियर टॉक्स का कि जिन्होंने इनवाइट किया, एंड आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे बोलने का, मुझे सुनने का। इफ यू फील एनी ऑफ द थिंग मिसलीडिंग, आई अपोलोजाइज फॉर इट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। बस
keep that thing in mind ke you have to grow yourself. You have to make yourself better version of yourself कि मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होगा, मेरा आने वाला कल मेरी फैमिली के लिए आज से बेहतर होगा. मैं किसी के आगे मांग नहीं सकता, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा. We must have to create that skill in ourselves, that thing in our hearts कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, मैंने कुछ बनना है लाइफ में, मैं कहीं पे मूव करूंगा. और ये एक दिन से नहीं होगा, ये बड़ी कंटिन्यू हसल है, बड़ा लंबा प्रोसेस है. फर्स्ट आप स्किल्ड होते हैं, देन आप मूव करते हैं, सेल करते हैं, बिजनेस की ओनर जाते हैं, बिजनेस से आप निकलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से निकलते हैं आप इन्वेस्टरशिप की तरफ जाते हैं. सो दीज आर वेरी लॉन्ग स्ट्रगल. अगर आपका माइंडसेट सिर्फ वहीं पे फंसा रहेगा कि मैंने कहीं से जॉब निकाल लेनी है, मैंने कहीं से एम्प्लॉयशिप के ऊपर आना है, नो, दैट इज नेवर बीन योर पोटेंशियल. You must have to keep yourself growing. You must have to keep yourself moving again, and again. So at the end, best of luck, all of you. Keep working hard, keep moving. If you keep falling down, you have to stand and you have to move again and again and again. So best of luck for your future. And thank you, everyone. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you so much, Hamidar Saab, for your great experience and sharing a lot of things like freelancing and how we can choose our FIP and what will be our future goals and so much things. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Now I think we take a lot of time, so it's time to wind up the session. And if you have any queries, any question, you can ask. Thank you so much, guys. Those who want to leave the session, they can leave the session. So thank you everybody for being with us in this amazing webinar, and we will be sharing our thank you message in your group. Thank you so much. And now we are closing our meeting. Thank you so much.